آج رمضان المبارک کی 18 تاریخ ہے اور سورہ فرقان کے آیت نمبر 74 کے حوالے سے درس قرآن کا عنوان ہے اولاد کی اصلاح کے لیے دعا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اور جو لوگ یہ دعا کرتے ہیں اپنے رب سے یہ کہتے ہیں ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما، کہ اے ہمارے رب ہمیں ہماری بیویوں سے ہماری اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں متقی لوگوں کا امام بنا۔ یہ سورہ فرقان کا آیت نمبر 74 ہے۔ دراصل اس سے پہلے سے آپ پڑھیں گے تو عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما سے یہاں تک اللہ رب العالمین نے رحمان کے بندوں کی یعنی اپنے خاص بندے جنہیں مؤمنین متقین صالحین کہا جاتا ہے، اللہ رب العالمین کے خاص بندوں کی 9 نشانیاں 9 صفات بیان کی کہ ان کی چال کیسے ہیں، ان کی بات کیسی ہوتی ہے، ان کے کردار کیسے ہوتے ہیں، ان کے اعمال کیسے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ آخرت بیان فرمائی کہ ان کی دعا کیا ہوتی ہے۔ تو یہاں ان کی دعا کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ لوگ یہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں ہماری بیویوں سے ہماری ذریت سے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں متقی لوگوں کا امام بنا۔ اس دعا کے 2 جز ہیں، 2 حصے ہیں، ایک اپنی ذریت اور اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں کہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اور دوسرا اپنے لیے کہ ہمیں متقیوں کا امام بنا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ گویا کہ رحمان کے خاص بندے اللہ کے مومن بندے یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب جس طرح سے تو نے ہمیں مومن بنایا ہے، اپنا خاص بندہ بنایا ہے، ہماری اولاد کو بھی ہماری ذریت کو بھی ہماری بیویوں کو بھی اسی طرح سے اپنے حکم کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، انہیں بھی ایمان پر اسلام پر قائم رکھ، انہیں کتاب و سنت کی پیروی کی توفیق دے تاکہ ان کے ذریعے سے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب ہو۔ اس کا پس منظر جانیں گے تو اور آسان ہو جائے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کے اندر دین کا اعلان کیا تو اس وقت جو لوگ ایمان قبول کر رہے تھے وہ دیکھ رہے تھے کہ کسی کا بیٹا کفر پر ہے، کسی کی ماں کفر پر ہے، کسی کی بیوی کفر پر ہے، کسی کا بھائی کفر پر ہے، اور یہ ایمان لے آتے تھے لیکن دیکھتے تھے کہ وہ لوگ کفر پر مر رہے ہیں، جہنم کی طرف جا رہے ہیں، تو انہیں بڑا دکھ ہوتا تھا، بڑی تکلیف ہوتی تھی۔ اور کیوں نہیں ہوگا کہ ایک انسان کو اپنی بیوی سے اپنے اولاد سے فطری محبت ہوتی ہے۔ دنیا کے اندر آدمی تھوڑی سی تکلیف ہو جائے تو انسان بے چین ہو جاتا ہے۔ اگر پتہ چل جائے گھر میں آگ لگ گئی ہے، 2 بچے پھنس گئے ہیں، تو ساری مصروفیت چھوڑ کر کے ساری دولت اور ساری چیزیں چھوڑ کر کے انسان بھاگتا ہے انہیں بچانے کے لیے۔ اگر باہر پردیش میں ہو، سن لے کہ یہاں کوئی حادثہ ہو گیا ہے، لوگ پریشان ہیں، تو پہلی فلائٹ پکڑ کر کے آدمی پہنچ جاتا ہے کہ اپنے بچوں کو بچائے کیسے۔ تو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے مومنوں کو کتنی فکر ہونی چاہیے، اس کا اس کے اندر بیان ہے۔ اور اس سلسلے میں مسند احمد کی ایک روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بدری صحابی، غزوہ بدر میں جن 2 صحابی کے پاس گھوڑے تھے ان میں سے ایک صحابی ہے مقداد بن اسود الکندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرے زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کے پاس گھوڑے تھے، 2 ہی گھوڑے تھے غزوہ بدر کے اندر، جیسا کہ آپ سن چکے ہیں۔ تو یہ مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ کے پاس زبیر بن نفیر کہتے ہیں کہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں ایک آدمی وہاں سے گزرے تو انہوں نے صحابی رسول کو دیکھ کر کے ٹھنڈ آہ بھری اور کہا کہ کتنی پیاری ہیں یہ آنکھیں، کتنی خوش نصیب ہیں یہ آنکھیں جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، اے کاش کہ ہم بھی اس زمانے میں ہوتے اور نبی کا دیدار کرتے، ہم بھی دیکھتے۔ یہ تمنا کی تو مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ پر بھڑک گئے کہ کیوں کہہ رہے ہو ایسا مت کہو، ایسی تمنا کیوں کرتے جو؟ تو دوسرے لوگ کہتے ہیں جو زبیر بن نفیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کے پاس، ہم لوگوں نے تعجب کیا کہ صحابی نے کیوں برا مانا، حالانکہ انہوں نے کوئی غلط خواہش نہیں کی تھی، ایک اچھی خواہش کی تھی کہ کاش کہ ہم بھی نبی کے زمانے میں ہوتے۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو کیا اتنا تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ صحابی نے کہا کہ کیا تمہارے لیے اتنا کافی نہیں ہے کہ تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اس کی وحدانیت کو مانتے ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی شریعت کو کی پیروی کرتے ہو،
इतना तुम्हारे लिए काफी नहीं है, नबी से मोहब्बत करते हो। उस जमाने में होते तुम्हारा पता नहीं क्या अंजाम होता। ऐसे भी लोग तो थे उस जमाने में जो मुंह के बल जहन्नम में घसीट के डाले गए। कितने लोगों को ईमान नसीब नहीं हुआ, कितने लोग मुनाफिकत की राह पर चल पड़े और जहन्नम के मुस्तहिक बने। तो अल्लाह ने तुम्हें उससे तो बचाया है, ईमान की दौलत तो नसीब किया है, नबी की पैरवी तो कर रहे हो, चाहे भले किसी जमाने में पैदा हुए। और उसके बाद फिर उन्होंने वो मंजर बयान किया, कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने जिस दौर में मबूस किया, नबी बना करके भेजा, वो इतना सख्त आजमाइश का दौर था कि उससे सख्त आजमाइश का दौर किसी नबी का दौर नहीं था। सारे नबियों से ज्यादा सख्त आजमाइश का दौर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना था, जो जमाने जाहिलियत का दौर था। कि उस जमाने में सबसे बेहतरीन काम लोग समझते थे बुत परस्ती को, उससे बेहतर कोई काम ही नहीं समझते थे। आप जानते हैं खाने काबा को 360 बुतों से लोगों ने सजा के रखा था और उनकी परस्ती पर फख्र किया करते थे लोग। उस जमाने में अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। अब जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत दी तो लोग भड़क गए और अल्लाह रसूल ने कितनी मुखालिफत की आपने सारी दास्तान सुनी। तो उस जमाने में जब लोग ईमान कबूल करते थे तो लोग देखते थे, जिन्हें ईमान नसीब हो जाता था वो तो अल्लाह का शुक्र अदा करते थे, लेकिन देखते थे कि उनका बेटा जहन्नम में जा रहा है, उनकी बीवी जहन्नम में जा रही है, उनके माँ बाप कबूल नहीं करके जहन्नम में जा रहे हैं। तो उन्हें बड़ा दुख होता था, बहुत तकलीफ होती थी। तो अल्लाह ताला ने उनकी दुआओं का यहाँ जिक्र किया है कि अल्लाह के बंदे जो होते हैं वो ऐसी दुआ करते हैं कि रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिल-मुत्तक़ीना इमामा। एक तो ये अपनी ज़ुर्रियत के लिए, औलाद के लिए, और ये होना भी चाहिए कि उनकी तालीम और तरबियत भी ऐसी करे कि नेक बने, और साथ ही साथ दुआ भी करे। क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, सही मुस्लिम की रवायत है कि इज़ा मातल इंसानु इनक़ता अन्हु अमलु, इंसान जब मर जाता है तो उसका सिलसिला मुनक़ती हो जाता है, खत्म हो जाता है। इल्ला मिन सलास, सिवाय 3 चीजों की। 3 चीजें ऐसी है कि उसके जरिए से उसका सवाब जारी रहता है। एक है सदक़े जारिया, ऐसा आदमी कोई सदका करके गया है जिसका अमल जारी है, सवाब जारी है और उसको फायदा पहुंच रहा है, जैसे मस्जिद बनवा के गया है या कुछ और काम ऐसा करके गया है, लोग नमाज पढ़ रहे हैं, उसको भी सवाब मिल रहा है। और इल्म युंतफ़अ बिही, या ऐसा इल्म जिससे लोग फायदा उठा रहे हैं, कोई ऐसा इल्म अपने पीछे छोड़ के गया है, जैसे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैहि सहीह बुखारी लेके चले गए, आज लोग पढ़ रहे हैं, क़यामत तक लोग पढ़ते रहेंगे, उन्हें सवाब मिलता रहेगा। इस तरह से नफ़ा बख्श इल्म। तीसरा है अवलदिन सालिहिन यदऊ लह, या अपने पीछे नेक औलाद छोड़कर जाए जो उसके मरने के बाद उसके लिए दुआ करता रहे, तो इसका सवाब उसे मिलता रहता है। तो औलाद के लिए दुआ करनी चाहिए, और अल्लाह के नेक बंदे जो होते हैं अपनी औलाद के लिए इस तरह से फिक्रमंद होते हैं, उनके लिए दुआ करते हैं। लेकिन आज हमारा मामला उल्टा है। आज हम न तो अपने औलाद की इसी तरबियत करते हैं कि नमाज नहीं बने, बल्कि दुनिया के मामलात में हम दुआएं ढूंढते हैं। जब 10वीं का एग्जाम आया तो दुआ पूछने आते हैं कि औलाद के लिए कौन सी दुआ पढ़ें। पूछे नमाज पढ़ता है, नहीं एग्जाम चल रहा है इसलिए नमाज नहीं पढ़ता है। हालांकि साहबे किराम की फिक्र क्या होती है, रहमान के नेक बंदों की फिक्र क्या होती है कि अल्लाह के दीन पर अमल करे ताकि हमारे आंखों को ठंडक नसीब हो। आज हमारे आंखों को ठंडक नसीब कब होती है, दुनिया में तरक्की करता है, दीन की हमें फिक्र नहीं रह गई औलाद के ताल्लुक से। बल्कि बाद बदनसीब वालिदैन तो ऐसे भी हैं कि बच्चा अगर दीन की तरफ जा रहा है तो उन्हें फिक्र हो जाती है मेरा बच्चा बिगड़ गया, अब ये दुनिया के काम का नहीं रह गया, तरक्की नहीं कर पाएगा दुनिया में, क्योंकि ये दीन की तरफ माइल हो गया है। और इसमें थोड़ी सी गलती बहुत सारे कम फहम दीनदारों से है भी कि दुनिया दीन की तरफ ऐसे लोगों को बुलाते हैं और ऐसा लोगों को निकालते हैं कि बस दुनिया बिल्कुल हाथ से छोड़वा देते हैं। ये थोड़ी सी गलती भी है। जो लोग बस छोड़ो दुनियादारी और चलो निकलो दीन के लिए, इस तरह से दीन को उन्होंने बदनाम किया है। लेकिन उसकी वजह से गलत असर ये हुआ कि अगर बच्चा नमाजी बन गया है, बच्चा अगर दीन की तरफ आ गया है, दाढ़ी रख लिया चेहरे पर, सुन्नत की पैरवी कर रहा है, तो माँ बाप परेशान हो जाते हैं। हालांकि अल्लाह के नेक बंदे की दुआ करते कि हमारे रब हमारे ज़ुर्रियत को दीन पर चला करके हमें आंखों की ठंडक नसीब फरमा। एक हिस्सा तो दुआ का ये है, और दूसरा हिस्सा ये है कि वजअल मुत्तकीन इमामा, हमें नेक लोगों का इमाम बना। क्या मतलब है, यानी हमें दीन के मामले में वो मकाम अता फरमा, दर्जे इमामत पर हमें फाइज कर दे कि हम ऐसे काम करके जाएं कि नेक मामले में लोग हमारी पैरवी करें, हमारे मरने के बाद भी लोग अच्छाई के साथ हमें याद करें और हमारी बहुत सारी अच्छी बातों की लोग पैरवी करें, ताकि मरने के बाद भी हमें सवाब मिलता रहे। उलमा ने कहा है कि
दुनिया की इमामत और इमारत तो अल्लाह से नहीं मांग सकते, लोगों से भी नहीं मांग सकते कि हमें अमीर बना दो, लेकिन दीन की इमामत अल्लाह से मांग सकते हैं कि अल्लाह हमें दीन का इमाम बना दे कि लोग हमारी पैरवी करें। और नेक लोगों की पैरवी करें क्या मतलब कि हम इस तरह से नेक बनकर दुनिया से जाएं कि हमारे मरने के बाद लोग उस नेक राह की पैरवी करें। जैसे अल्लाह ने बनी इसराइल के बारे में फरमाया वजअलना मिनहुम अइम्मतन यहदूना बिअमरिना लम्मा सबरू व कानू बिआयातिना यूक़िनून, कि हमने उन्हें वजअलना मिनहुम अइम्मतन यहदूना बिअमरिना, हमने उन्हें ऐसा अइम्मा बनाया कि जो हमारे हुक्म के मुताबिक रहनुमाई करते हैं और सब्र करते हैं और यकीन करते हैं। लम्मा जब उन्होंने सब्र किया और यकीन किया। अब्दुर्रहमान नासिर अस्सादी रहमतुल्लाह अपनी तफसीर सादी के अंदर फरमाते हैं कि ये दर्जे इमामत जो मोमिनीन अल्लाह से मांगते हैं, गैर सी बात है ये दर्जा मिलने के लिए कुछ असबाब भी अख्तियार करने पड़ेंगे। वो असबाब क्या है? सब्र और यकीन। जब आप सब्र और यकीन का रास्ता अख्तियार करेंगे, जैसे कि अल्लाह ने यहाँ बयान फरमाया सूरह सजदा की आयत नंबर 24 में कि वजअलना मिनहुम अइम्मतन यहदूना, हमने उनको ऐसे अइम्मे हुदा बनाया जो हमारे हुक्मों के मुताबिक लोगों की रहनुमाई करते हैं। कब? लम्मा सबरू व कानू बिआयातिना यूक़िनून, जब उन्होंने सब्र किया और हमारी आयतों पर यकीन किया। तो जब बंदा सब्र करेगा और यकीन हासिल करेगा तब उसे ये दर्जा मिलता है, और जब ये दर्जा पा लेगा तो अल्लाह ताला उसको बदला भी वैसे ही देता है, जैसा कि आगे की आयत में है उलाइकल लदीना युज़ौनल गुरफता बिमा सबरू, यही वो लोग हैं कि जिनको उनके सब्र के बदले में जन्नत में ऊंचे ऊंचे दर्जात दिए जाएंगे, बुलंद मकाम उन्हें दिया जाएगा। तो इस तरह से अपनी औलाद के लिए और अपने आप को भी सालिहीन और नेक लोगों के दर्जे पर फाइज करने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ मांगना ये अल्लाह के नेक बंदों का सेवा रहा है, दस्तूर रहा है। हमें चाहिए कि हम भी इस दुआ को याद करें, अपनी दुआओं में इसे शामिल करें और पढ़ते रहें और उसके मुताबिक अमल भी करते रहें। अल्लाह ताला से दुआ है रब्बुल आलमीन हम सबको सही मानों में रहमान का बंदा बनाए और रहमान के बंदे की हमें सिफात का फरमाए। आमीन तक़ब्बल या रब्बुल आलमीन।